Next, the Loch Ness Monster is the legendary animal that supposedly resides in the depth of the Loch Ness, a long, narrow lake situated in a rural Scotland. Over the years, thousands have reported seeing something in the lake. तो उत्तर कहता है कि एक झील का एक राक्षस है, एक मॉन्स्टर है जिसका नाम है लोच नेस। तो एक रिवर में है और बहुत सारे लोगों ने इसको, झील में है, बहुत सारे लोगों ने इसको क्लेम किया है कि इसको देखा है। नेक्स्ट, द abominable snowman shares fame as one of the great mysteries of the world. The abominable snowman is a legendary creature of the Himalayas mountain region. It is reported to live in the forest regions near the snow line. This creature is also known to some by the name of Yati. तो हिमालय के पर्वत पे एक ऐसे क्रिएचर को देखा गया है, एक ऐसे घिनौने क्रिएचर को देखा गया है जिसको लोग हिम मानव या यति के नाम से जानते हैं और बहुत सारे लोगों ने इसको देखा है, as you can see in the picture. Next mystery is that the Bermuda Triangle presents another intriguing wonder to the world. More than 200 planes, ships, and boats are believed to have disappeared in this triangle without a trace. This includes more than 1,000 people. So, dear students, now in this chapter, basically we are going to study about the Bermuda Triangle. It's a part of a sea where many boats and many ships and many planes have disappeared. So about this we have to study in this chapter, and more than 1,000 people have disappeared in this. So let's begin, let's start, and let's understand about this. Firstly, I tell you about Bermuda Triangle. As you can see in the picture, it is a part of a sea, and this is the imaginary line. That part is called Bermuda Triangle. Okay, so about this part we are going to study, right? So about this part we are going to study. Let's begin the class. Now read more about Bermuda Triangle. The mysterious part of this Atlantic Ocean is located off the east coast, the United States. तो उत्तर कहते हैं कि ये जो पार्ट है, मिस्टीरियस पार्ट है, एक रहस्यमय जो पार्ट है, वो अटलांटिक ओशन में है और जो यूनाइटेड स्टेट के ईस्ट कोस्ट में है. This area is a three-sided part of ocean known as the Bermuda Triangle. तो ये जो पार्ट है वो थ्री साइड पार्ट है, इसको हम बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं. Formed by an imaginary line drawn by Miami. तो मियामी एक सिटी का नाम है, उसके द्वारा कुछ इमेजिनरी लाइन बनाई गई है, कुछ एरिया डिसाइड किया गया है, इस एरिया को हम बर्मुडा ट्रायंगल बोलते हैं. फर्स्ट, फ्लोरिडा टू बर्मुडा टू San Juan and Puerto Rico and back to Florida. As you can see this part in the picture, this part is Florida, Bermuda, and San Juan and Puerto Rico. This part is called Bermuda Triangle, right? Next, what is weird about this place is that it has been the location of numerous strange disappearances. So author says that what is the odd thing regarding this part, कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे शिप्स, बहुत सारी प्लेन्स यहाँ पे डिसअपीयर हो गए, गायब हो जाते हैं यहाँ पे, right? Over 100 ships and planes have vanished in this part of the world, according to records. Again, author says that number of planes and ships have vanished here in this part because it has been recorded. यानी कि बहुत सारे प्लेन्स और शिप्स यहाँ पे, जहाज जो होते हैं, समुद्री जहाज जो होते हैं, हवाई जहाज जो होते हैं, वो यहाँ पे आके गायब हो जाते हैं. इस बात को रिकॉर्ड किया गया, यानी कि इस बात के सबूत पे मिले हैं. नेक्स्ट पेज. The earliest known disappearance took place, please wait.
The earliest known disappearance took place in 1609 when the Sea Venture, a ship bringing English settlers to the colony of the Virginia, was wrecked near the islands of Bermuda. तो सबसे पहले जो डिसअपियर्स थी यानी कि जो जानी जाती है वो क्या हुई थी 1609 में थी एक सी वेंचर जो शिप थी जो इंग्लिश पीपल को वहां से ले जा रही थी वो वहां पे उस आइलैंड पे जाके वो वहां पे गायब हो गई उसका बाद में मलबा भी मिला राइट नेक्स्ट द शिप्स लॉन्ग बोट सेट सेल टू गेट हेल्प इट डिसअपीयर्ड फॉरएवर उसके बाद जो उस शिप की लॉन्ग बोट थी लॉन्ग बोट क्या होती है हर एक शिप के साथ एक एक्स्ट्रा बोट होती है उसमें जो इमरजेंसी के लिए हेल्प के लिए उसको यूज किया जाता है तो उस लॉन्ग बोट को भी भेजा गया वो भी वहां पे डिसअपियर हो गई नेक्स्ट लाइन in 1750 5 Spanish treasure ships were caught in a storm here फिर तो कहता है कि 1750 में स्पेनिश की जो ट्रेजर्स के शिप्स थी यानी कि खजाने की जो भरी हुई शिप्स थी वो यहाँ पे स्टॉर्म में एक तूफान में फंस गई थी 3 of them disappeared without leaving any trace of wreckage wreckage का मतलब होता है किसी भी चीज का जो मलबा होता है जैसे कोई हम घर तोड़ते हैं तो जो उसका वेस्ट मटेरियल होता है दैट इज कॉल्ड wreckage तो वो कहते हैं कि इसमें से 3 तो डिसअपियर हो गई थी उनका कोई wreckage भी नहीं मिला कोई मलबा भी नहीं मिला The next big mystery in 1840 involved a French ship called the Rosalie which was found abandoned and drifted तो कहते हैं कि उसके बाद जो नेक्स्ट मिस्ट्री हुई जो नेक्स्ट ऐसा हुआ वो 1840 में हुआ जब एक फ्रेंच शिप जो थी उसका नाम रोसली था वो यहाँ पे उसको पाया गया कि उसके अंदर वो अबंडनेट थी यानी कि उसको छोड़ दिया गया था उसके अंदर कोई भी नहीं था और ड्रिफ्टिंग वो तैर रही थी पानी में बाद में ऐसा पाया गया देयर वाज नो साइन ऑफ एनी स्ट्रगल और बैटल और वहां पे ऐसा कोई भी साइन नहीं था जिससे पता लगे कि उस जो शिप के साथ कोई स्ट्रगल हुआ कोई लूटपाट हुई या किसने फाइट की वहां पे ऐसा कुछ भी वहां पे साइन दिखाई नहीं थी द रोसली सेल्स वर परफेक्टली सेट इन द पोजीशन जो वो शिप थी वो अच्छे से परफेक्टली सेल कर रही थी एंड ऑल द कार्गो वाज स्टिल ऑन द बोर्ड जितना कार्गो था कार्गो मतलब जो सामान उस शिप पे ले जाया जाता है लाया जाता है वो उस पे बिल्कुल ठीक रखा हुआ था when the ship was found जब उस शिप को फाउंड किया गया उसको ढूंढा गया तो सब कुछ ठीक था अच्छे से सेल कर रही थी अच्छे से चल रही थी वो और जो कार्गो था सामान था वो उस पर वैसे ही रखा हुआ था उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया the strange thing was that the entire crew was missing जो सबसे अजीब बात थी उस शिप के ऊपर वो जो क्रू मेंबर्स थे यानी कि जो लोग उस पर सवार थे उस शिप पर वो उसमें मिसिंग थे वो उसमें नहीं थे नेक्स्ट numerous aircraft as well as ships began to be reported missing in the Bermuda Triangle फिर उत्तर कहता है कि कितने सारे एयरक्राफ्ट और जो शिप्स होती हैं वो उस बरमूडा ट्रायंगल पर आके वैसा माना जाता है कि वो मिस हो जाते हैं यहाँ से यानी कि गायब हो जाते हैं ऐसा बहुत बार रिपोर्ट किया गया The most famous of these strange disappearances was in 1945 that of flight 19 तो कहते हैं कि जब सबसे मोस्ट स्ट्रेंज जो थी वो अजीबोगरीब जो डिसअपीयरेंस थी यानी कि गायब होना था वो 1945 में था फ्लाइट 19 एक फ्लाइट थी जिसका नाम था फ्लाइट 19 द नेम गिवन टू 5 यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ट्रेनिंग प्लेन्स तो ये 5 नेवी के जो यूनाइटेड स्टेट के जो प्लेन्स थे उनको ये नाम दिया गया था फ्लाइट 19 तो उधर कहते हैं these planes had full supplies of fuel when they left their base in Florida तो उधर कहते हैं कि जब वो फ्लोरिडा से वो जो फ्लाइट 19 जो प्लेन्स थे वो वहां से चले तो उसके अंदर अच्छे से फ्यूल था यानी कि बहुत सारा फ्यूल था बहुत सारा ईंधन था after only an hour in the next page air however the control tower with which they were in the radio contact received an unexpected message
तो कहते हैं कि 1 घंटे के बाद ही क्या हुआ, जो वहां पे कंट्रोल टावर थे उन्होंने अनएक्सपेक्टेड यानी कि ऐसे मैसेज प्राप्त करना शुरू कर दिए जिसकी उम्मीद नहीं थी, यानी कि कुछ रॉन्ग सिग्नल उनको मिलने शुरू हो गए। The flight leader reported that he knew the aircraft were off their course, but he was completely unaware of their location. तो जो फ्लाइट के लीडर्स थे, लीडर जो था फ्लाइट का, जो फ्लाइट को उड़ा रहा था, तो उसने कहा, उसने रिपोर्ट किया रेडियो सिग्नल के द्वारा कि उसको पता है, उसने ऐसे कहा कि जो हमारा प्लेन है अपने रास्ते से भटक गया है, बट उसको ये नहीं पता कि उसकी लोकेशन क्या है, अब वो किस स्थान पर है, ऐसा वो नहीं बता पा रहा। He said that the compasses as well as all other instruments were showing different readings and that the pilots had no idea where they were. तो उसने कहा कि जो उसमें कंपासेस, जो टूल्स लगे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, वो कुछ अलग ही रीडिंग शो कर रहे हैं, यानी कुछ अलग ही बता रहे हैं, उनसे एग्जैक्टली नहीं पता लग रहा कि हम कहाँ पर हैं, राइट, बट किसी को भी लोकेशन का नहीं पता। Although the day were clear, the pilots were not able to determine the position of the sun. और उन्होंने ये बात भी बताई कि जो दिन था पूरे अच्छे से क्लियर था, साफ था, कोई बादल भी नहीं थे, बट फिर भी जो पायलट्स थे उसके, उस फ्लाइट के, उस प्लेन के, वो ये निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि सन की पोजीशन कहाँ पे है। They were unable to chart the course that would have led them to a safe landing. वो रास्ता नहीं बना पा रहे थे जिसकी वजह से वो सेफ लैंडिंग कर सके, ऐसा उनके साथ हो रहा था। Within another hour, all radio contact was broken between the control tower and the 5 planes. फिर वो उधर कहते हैं कि 1 घंटे के बाद, यानी कि 1 घंटे के अंदर अंदर जो भी उनके रेडियो कॉन्टेक्ट्स हो रहे थे वो कंट्रोल टावर से, वो सभी के सभी टूट गए, यानी कि उनसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया। नेक्स्ट, an attempt was made to find the 5 missing planes and their crews. उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन प्लेन्स को ढूंढने के लिए और उन क्रू मेंबर्स को ढूंढने के लिए उन्होंने एक कोशिश की। A group of rescue aircraft was sent searching. उनको ढूंढने के लिए एक एयरक्राफ्ट को भेजा गया। One of these twin engines seaplane had a crew of 13 men on the board. Again the unexpected happened. तो एक तो उसमें एयरक्राफ्ट ऐसा था, जहाज ऐसा था जिसमें डबल इंजन लगा हुआ था और उसमें 13 क्रू मेंबर थे और उनके साथ भी अनएक्सपेक्टेड कुछ हुआ। क्या हुआ? इंस्टेड ऑफ रिसीविंग न्यूज ऑफ साइटिंग द रेस्क्यू, कंट्रोल बेस्ड लॉस्ट ऑल द कॉन्टेक्ट विद दिस प्लेन एज वेल। तो इसके स्थान पे कि उनको कोई न्यूज मिले कि उन्होंने उनको ढूंढ लिया है, बल्कि क्या हुआ, उनका भी उनके साथ कांटेक्ट, रेडियो कांटेक्ट जो होता है वो भी उनके साथ टूट गया। No reason has ever been given for the strange way in which those 6 planes vanished. अब वो 5 प्लेन तो पहले वैनिश हो गए थे, वहां पे गायब हो गए थे, तो इसका भी उनको रीजन नहीं पता लगा कि किस वजह से ये जो प्लेन था ये भी वैनिश हो गया, राइट? Please wait. Please wait. Let me take the attendance first. Okay, yes. Since 1945, in addition to 6 planes, other aircraft have been listed as missing in the Bermuda Triangle. In every case, the reports state radio contact lost. कहते हैं कि 1945 के बाद इसके अलावा जो भी और प्लेन्स वहां पे मिस हुए, यानी कि मिसिंग हुए, यानी कि वहां पे लॉस्ट हुए, वैनिश हुए, तो उनकी भी सेम रिपोर्ट की जाती है कि उनके रेडियो कॉन्टेक्ट लॉस्ट हो जाते हैं, यानी कि रेडियो कॉन्टेक्ट टूट जाते हैं। In another interesting case, a pilot named Chuck Wackley described an unusual flight in the Bermuda Triangle in 1964. तो कहते हैं कि एक दूसरे केस में क्या हुआ, एक चक वैकली नाम के एक पायलट थे, उनके साथ क्या हुआ 1964 में, वो बताया जा रहा है। The wings of his plane suddenly
began to glow and all the instrument began to behave in unusual way. तो कहता है कि उसके साथ क्या हुआ, जो उसके विंग्स थे यानी कि उस प्लेन के जो विंग्स थे वो सडनली ग्लो करने लगे, चमकने लगे। जो और इंस्ट्रूमेंट थे वो भी अनयूजुअल वे में, अजीब से तरीके से बिहेव करने लगे, गलत रीडिंग देने लगे। फेलिंग टू ऑपरेट प्रॉपरली, तो वो कहता है कि वो जो पायलट था वो उसको ऑपरेट करने में फेल हो रहा था, यानी कि उनको ऑपरेट नहीं कर पा रहा था। आफ्टर अबाउट 5 minutes during which time he could do nothing to control his aircraft, the glow disappeared and the instrument began to work again. तो कहता है कि 5 मिनट के अंदर जो कंट्रोल कर सकता था वो नहीं कर पाया। 5 मिनट के बाद क्या हुआ, वो जो ग्लो कर रहे थे उसके विंग्स, उन्होंने ग्लो करना बंद कर दिया और उसके इंस्ट्रूमेंट, जो उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं प्लेन के अंदर, वो दोबारा से अच्छे से काम करने लगे। In 1966, the captain of tugboat called the Good News reported an unusual experience in the area of the triangle. फिर उधर कहता है कि एक और घटना वो बताता है कि 1966 में क्या होता है। एक टग बोट होती है, टग बोट एक पावरफुल बोट होती है, राइट। तो कहते हैं टग बोट, जिसका उस बोट का नाम था गुड न्यूज, उसके बारे में उसका अनयूजुअल एक्सपीरियंस क्या होता है वो बताता है। He started out with the weather both calm and clear. तो कहते हैं कि जब उस पायलट ने, कैप्टन ने उस टग बोट को चलाना शुरू किया तो जो वेदर था बिल्कुल काम था, बिल्कुल क्लीन था। एवरीथिंग वाज वर्किंग स्मूथली, सब कुछ बिल्कुल ठीक से चल रहा था। सडनली अ मिस्टीरियस फॉग क्लोज्ड ओवर द टग। तो कहते हैं कि अचानक से एक फॉग ने उस टग को पूरी तरह क्लोज कर लिया, ढक लिया। कैप्टन डॉन हेनरी stated that all the electrical power suddenly failed. तो जो कैप्टन था डॉन हेनरी, यानी कि उस जो टग बोट का कैप्टन कौन था, डॉन हेनरी था, वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है वो भी फेल हो जाती है। He felt as if the whole boat were being pulled backward. उसने ऐसा कहा कि उसने ऐसा महसूस किया कि जो उसकी बोट है, ऐसा लगता है कोई उसको पीछे की तरफ खींच रहा है। He ordered full speed ahead away. तो उसने कहा कि उसने उस टग बोट का पूरा जोर लगा दिया आगे जाने के लिए। Shortly after the tug moved out of the fog. तो कहते हैं कि थोड़े समय के बाद, कुछ देर के बाद, वो जो उसकी बोट थी, टग थी, वो उस फॉग में से बाहर निकल आती। द इलेक्ट्रिकल पावर रिटर्न्स, जो उसकी इलेक्ट्रिकल पावर होती है, जो बिजली की सप्लाई होती है उसके अंदर, वो भी वापस आ जाती है। द टग managed to reach port safely. Although all the ship's batteries had gone dead, even the flashlight batteries of some crew members had to be thrown away. तो कहता है कि उसके बाद उसमें से वो उस पोर्ट पर, उस स्थान पर, किनारे पर आसानी से पहुंच जाते हैं। तो कहता है कि हालांकि जो उसकी बैटरीज थी, जो फ्लैश लाइट की बैटरीज थी क्रू मेंबर की, वो भी वहां पे खत्म हो जाती, यानी कि डेड हो जाती, राइट। So some typical words are here. Let's understand them. Longboat, a large boat which may be launched from a sailing ship. एक बड़ी सी बोट होती है, पावरफुल बोट होती है, जो सेलिंग शिप होती है उनके अंदर रखी जाती है। बेसिकली जब किसी हेल्प की जरूरत होती है या किसी एक्स्ट्रा बोट की जरूरत होती है तो उसको यूज किया जाता है। ट्रेजर शिप्स क्या होती हैं? Ships with the cargo of gold, silver, jewel and other valuables, यानी कि खजाने ले जाने वाले शिप्स को जो बोलते हैं ट्रेजर शिप्स बोलते हैं। रैकेज क्या होता है? बैडली डैमेज ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, इसको हिंदी में बोल सकते हैं मलबा, किसी भी चीज का मलबा, शिप का हो सकता है, किसी घर का हो सकता है। Next, tugboat, a boat with a powerful engine that is used to pull large ships in and out of harbor. तो ऐसी बोट जो किनारे यानी कि किसी बड़ी सी बोट को, शिप को किनारे तक ले जाने के लिए हेल्प करती हैं, इमरजेंसी में काम आती है, उनको टग बोट बोलते हैं, राइट। कम ऑन द नेक्स्ट पेज। Numerous explanations have been offered to account for these eerie happenings
तो कहते हैं कि इस भयानक सी हैपनिंग को, अजीबोगरीब हैपनिंग के लिए बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दी गई हैं, बहुत सारे इनकी व्याख्या की गई है कि इसकी वजह से ऐसा होता है, इसकी वजह से ऐसा होता है। Some of the theories are just as old as the events themselves. उत्तर कहते हैं कुछ तो जो explanations हैं, theories हैं, जो इनके कारण बताए गए हैं ऐसा क्यों होता है, वो उतने ही strange हैं, उतने ही अजीब हैं जितने कि ये events हैं। तो कहते हैं one theory is that there is a large underwater chunk of iron in the area that acts as a magnet upon any metal instrument that may be near. तो फिर उत्तर कहता है यानी कि कुछ लोगों का मानना है कि इसके नीचे, पानी के नीचे बहुत सारा आयरन रखा हुआ है, बहुत सारा चंक ऑफ आयरन है, कुछ लोहा है, राइट। उसकी वजह से क्या होता है, ये जो आयरन है मैग्नेट की तरह काम करते हैं, और जो भी यहाँ पे इसके ऊपर से मेटल के इंस्ट्रूमेंट पास करते हैं, शिप पास करती हैं, प्लेन पास करते हैं, तो उनको वो अपनी तरफ खींच लेते हैं। This would explain why compasses sometimes behave so peculiarly on ships and planes traveling in the triangle. तो कहते हैं कि इसी की वजह से जो कंपासेस हैं वो बिल्कुल विचित्र रूप से, अजीब तरीके से बिहेव करते हैं, जो भी यहाँ से प्लेन्स यहाँ से ऊपर से ट्रायंगल यानी कि बरमूडा ट्रायंगल को क्रॉस करते हैं। Another idea is that there may be certain location on the planet where the force of gravity does not work. तो कुछ और आइडियाज हैं, कुछ और थ्योरीज हैं जो क्या कहती हैं, वो कहते हैं कि इस लोकेशन पे ना ग्रेविटी नहीं है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डज नॉट वर्क, यानी कि ग्रेविटी की जो फोर्स होती है वो काम नहीं करती। This would definitely disturb the regular operation of planes and vessels. जो लार्ज शिप्स होती हैं, प्लेन्स होते हैं, इसी की वजह से वो अपने अच्छे से वर्क नहीं कर पाती, अच्छे से काम नहीं कर पाती। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करती। कुछ ऑथर्स का, कुछ साइंटिस्ट का, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। The third suggestion is that the triangle may be a place where warm ocean currents and cold ocean currents meet and cause the tides to turn in different directions. कुछ लोगों का मानना है, जो थर्ड सजेशन क्या है वो क्या है कि यहाँ पे इस सागर में, इस महासागर में ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं बहती हैं, जिनकी वजह से टाइड यानी कि ज्वार भाटा उत्पन्न होता है और उसमें डिफरेंट डायरेक्शंस बन जाती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। This, it is said, may cause the Earth's magnetic force to behave in unexpected way in the Bermuda Triangle. तो इसकी वजह से ऐसा कहा जाता है कि इसकी वजह से ऐसा यहाँ पे होता है, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे बनती है और वो सारे जो शिप्स और प्लेन्स होते हैं वो अनएक्सपेक्टेड वे में बिहेव करती हैं। Next, perhaps the weirdest theory of all is one which scientists believe the least. तो कहते हैं कि सबसे कम जो बिलीव करने वाले यानी कि साइंटिस्ट जिस पे सबसे कम बिलीव करते हैं वो थ्योरी ये है। कुछ लोग इस तरह की थ्योरी भी देते हैं, इस तरह का रीजन भी बताते हैं यहाँ पे ऐसा होने का। वो थ्योरी क्या है? द थ्योरी इन्वॉल्व्स बीइंग्स begins from another planet. Beings from another planet. According to this explanations, visitors from outer space have made a landing on our planet. तो वो कहते हैं कि कुछ थ्योरी इस तरह शो करती हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे दूसरे प्लेनेट के बींग्स रहते हैं, बींग्स यानी कि यहाँ पे दूसरे प्लेनेट के यहाँ पे एलियंस रहते हैं, एलियंस आते हैं और यहाँ पे वो ऐसा उनकी वजह से होता है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्लेनेशन, विजिटर्स फ्रॉम आउटर स्पेस हैव मेड अ लैंडिंग ऑन आवर प्लेनेट। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो दूसरे प्लैनेट्स के लोग हैं यहाँ पे वो आ चुके हैं। The Bermuda Triangle is a kind of doorway through which they pull ships and aircraft that they wish to study. और इसके द्वारा ये एक उनका डोरवे है, प्रवेश का रास्ता है, और यहाँ से वो क्या करते हैं, एलियंस जो हैं, दूसरे ग्रह के जो लोग हैं, वो दूसरी शिप्स को, एयरक्राफ्ट को पुल करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ और उनको स्टडी करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, उनको पढ़ते हैं। नेक्स्ट, many people refuse to travel through the Bermuda. बहुत सारे लोग हैं जो बरमूडा ट्रायंगल में ट्रेवल करने को
रिफ्यूज करते हैं, मना करते हैं, बिकॉज दे आर अफ्रेड, क्योंकि वो डरे हुए होते हैं। दे आर विलिंग टू स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम और मनी टू टेक अ लेस डायरेक्ट रूट व्हेन ट्रेवलिंग। तो कहते हैं कि वो चाहते हैं, यानी कि वो विश करते हैं कि वो एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे, एक्स्ट्रा टाइम भी लगाएंगे, बट वो बरमूडा ट्रायंगल वाले रास्ते से जाना पसंद नहीं करते, उसको अवॉइड करते हैं। अदर लाफ एट द नोशन ऑफ मिस्टीरियस फोर्सेस एट वर्क, और कुछ और लोग इस बात पे लाफ करते हैं, हंसते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह की मिस्टीरियस अजीबोगरीब फोर्स यहाँ पे काम नहीं करती। They purposely choose to sail or fly through the area. वो जानबूझकर इस एरिया से सेल करना, फ्लाई करना चाहते हैं। How about you? तुम अपने बारे में बताओ। Would you dare to travel through the mysterious Bermuda Triangle or would you avoid it? तो उत्तर कहता है कि तुम अपने बारे में बताओ कि तुम क्या करना चाहोगे। तुम यहाँ से इस मिस्टीरियस रास्ते में बरमूडा ट्रायंगल को पार करना चाहोगे, तुम्हारे में हिम्मत है, या फिर तुम इसको अवॉइड करना चाहोगे, राइट?